بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، صاحب حیثیت آدمی کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 وہ بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ان 5 میں سے ہمیں فی الحال زکوٰۃ سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سنیں گے تو زکوٰۃ کے بہت سے بنیادی مسائل آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کا ثواب بھی ملے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ جس طرح دن میں 5 وقتہ عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہیں، اسی طرح مالدار صاحب حیثیت عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں زکوٰۃ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت گنجا سانپ ایسے آدمی پر لپٹ جائے گا۔ گنجے سانپ سے مراد ہے زہریلا سانپ، اور بار بار وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو آدمی خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کے مال کو جہنم کی بھٹی میں تپایا جائے گا اور پھر ان کے جسموں پر وہ داغا جائے گا، ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا، پہلو پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، بار بار کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا آج تم اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ خطرناک وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور آپ روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وہاں کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور مسلمان مستحق اور غریب لوگوں کے درمیان وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ اسلامی نظام معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ساری دنیا کے مالدار صاحب حیثیت مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور وہ زکوٰۃ مستحق لوگوں پر خرچ ہونے لگے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نظر نہ آئے، اور یہ مال صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ہم نے زکوٰۃ اس لیے بھی فرض کی تاکہ صرف چند لوگ ہی مالدار نہ رہ جائیں، انہی کے پاس
बुनियादी तौर पर सारा माल इकट्ठा होकर न रह जाए, वही दुनिया के मालदार तरीन लोग न हो जाएं, वही उन्हीं की मालदारी दिन ब दिन न बढ़ती रहे, बल्कि ये माल लोगों के हाथों में घूमता रहे, वो लोग जो गरीब हैं उनके पास भी ये माल पहुंचे। ये कितना जबरदस्त निज़ाम है ज़कात का जो इस्लाम ने हमें अता फरमाया है। और सदक़ात के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को बढ़ाता है, सूद और रिबा को, इंटरेस्ट को मिटाता है। और ज़कात एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि अगर कोई आदमी साहिब हैसियत है, मालिक निसाब है और वो ज़कात की अदायगी का अहतमाम करता है, तो कोई नहीं कह सकता कि कोई मालदार था और ज़कात सदक़ात की अदायगी का अहतमाम करता था और उस पर फ़क्र फ़ाक़े की नौबत आई हो और वो गरीब हो गया हो। ये इस निज़ाम ज़कात की खुसूसियत है कि जो आदमी इसका अहतमाम करता है अल्लाह ताला उसे खुशहाल कर देते हैं। अब कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनका जानना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। नंबर एक, ज़कात के माना क्या है? ज़कात के लुग़वी माना होते हैं बढ़ाना और पाक साफ करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो लोग कामयाब हो गए जो नमाजों का एहतमाम करते हैं और ज़कात के भी अदायगी का एहतमाम करते हैं। यहाँ ज़कात से मुराद अपने क़ल्ब का तज़किया भी है कि आदमी अपने ज़हन व दिमाग को, अपने दिल को तमाम तर बुरी आदतों से पाक व साफ रखे, कीने से, हसद से, बू से। इसी तरह यहाँ ज़कात से मुराद ज़कात की अदायगी भी है। और दूसरा माना होता है इसका बढ़ना। जब आदमी ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को बढ़ा देते हैं। इस्तिलाह में ज़कात कहा जाता है सालाना माल की उस मखसूस रकम को जो साहिब हैसियत और मालिक निसाब लोगों पर साल गुजरना के बाद वाजिब होती है। अब ज़कात किस आदमी पर फ़र्ज है? ज़कात उस आदमी पर फ़र्ज है जो आक़िल है, बालिग है, मुसलमान है। लिहाजा मजनू पर ज़कात वाजिब नहीं, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं, काफिर पर तो ज़कात वाजिब है ही नहीं। और वो आदमी ऐसा है कि जिसके पास या तो 52.5 तोला चांदी हो, या ये कि उसके पास 7.5 तोला सोना हो, या ये कि उसके पास इतने पैसे हों जितने पैसों में 52.5 तोला चांदी आ सकती है, या ये कि उस आदमी के पास थोड़ा सा सोना हो, थोड़ी सी चांदी हो, थोड़े से पैसे कैश हो, या ये कि सामान्य तिजारत हो। वो सब मिल मिलाकर इतना अमाउंट बन जाता हो कि जिससे आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो इस आदमी पर ज़कात वाजिब होगी। बहुत सारे हमारे साथी परेशान रहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 7.5 तोला सोना है, चांदी तो नहीं है, तो मुझ पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना है लेकिन चांदी बिल्कुल नहीं है और कैश भी नहीं है, तो इस आदमी पर ज़कात वाजिब होगी। चूंकि सोने के हिसाब से अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना हो तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। इसी तरह किसी आदमी के पास सोना बिल्कुल नहीं है लेकिन उसके पास 52.5 तोला चांदी है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लिहाजा अगर किसी आदमी के पास तन्हा निसाब नहीं है, मिसाल के तौर पर उसके पास ना तो 7.5 तोला सोना है, ना 52.5 तोला चांदी है, लेकिन उसके पास मिसाल के तौर पर 1 तोला या 2 तोला सोना है, लेकिन उसके पास चांदी भी है, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो वो इतनी बन जाती है जितने पैसों में 52.5 तोला चांदी आ सकती है। लिहाजा अब इस आदमी पर ज़कात वाजिब होगी। या ये कि आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी सी चांदी है, सोना बिल्कुल नहीं है और पैसे हैं, पैसे और चांदी मिलाकर या पैसे और सोने मिलाकर अगर इतने पैसे बन जाएं कि जितने पैसों में आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो इस आदमी पर ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा इस मसले को याद रखना और समझना बेहद जरूरी है। और इसी में ये बात भी मलहूज रखें कि जो निसाब अभी बयान किया गया वो निसाब ज़रूरत असलिया से ज़ायद होना चाहिए, यानी इस्तेमाली चीज़ों पर ज़कात नहीं है। इस्तेमाली चीज़ों के अलावा आदमी के पास ये सब कुछ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आदमी का अपना घर है, चाहे वो कितना ही कीमत का हो, आदमी के पास गाड़ियां हैं, मोबाइल है, भारी भरकम ज़रूरत के सामान है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो कितने भी कीमती हों, उनके अलावा निसाब होना चाहिए जो अभी जिक्र किया गया। लिहाजा ज़रूरत की चीज़ों पर, इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। इसी तरह वो निसाब ऐसा हो कि जो कर्ज से खाली हो, यानी आदमी पर कर्ज ना हो, और अगर कर्ज है तो कर्ज की रकम, कर्ज का अमाउंट माइनस करने के बाद उसके पास इतना बच जाता हो जितने पैसों में 52.5 तोला चांदी आ जाती है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 5 लाख रुपए है
ये सोना चांदी कैश सब मिल मिला के 5 लाख रुपए हैं, ये सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, सोना चांदी उसके पास बिल्कुल नहीं है। यानी इन सबको मिला के जो भी कुछ उसके पास बनता है, और उसके ऊपर 2 लाख का कर्ज भी है, तो अब 2 लाख के कर्ज को माइनस किया जाएगा, 3 लाख पर इस पर ज़कात वाजिब होगी। पूरे टोटल 5 लाख पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, कर्ज की रकम को माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा, अगर वो इस कदर है कि वो 52.5 तोला चांदी उससे खरीदी जा सकती है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी, जितना भी बचेगा। अब एक सवाल यह है कि ज़कात तो फर्ज हो गई, लेकिन ज़कात की अदायगी कब वाजिब है? अगर किसी आदमी पर ज़कात फर्ज हुए 1 साल गुजर गया, तो साल गुजरने के बाद इस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, यानी अब अदा करना इसके लिए जरूरी होगा। साल गुजरने से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर रुपये पैसे पर साल गुजरना जरूरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक आदमी पर ज़कात फर्ज हो जाए, तो अब जब अगला साल वो दिन आएगा जिस दिन उस पर ज़कात फर्ज हुई थी, तो इसके लिए ज़कात अदा करना ये जरूरी होगा। अब चाहे उसके पास कुछ पैसे, कुछ सामान्य तिजारत अभी 1 महीना पहले ही, 10 दिन पहले ही आया हो, इससे कोई बहस नहीं है। इसी तरह दरमियाने साल में भी अगर पैसे घटते बढ़ते रहे, निसाब घटता बढ़ता रहा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू साल के अव्वल और आखिर का एतबार होगा, लिहाजा इस पर ज़कात की अदायगी साल गुजरने पर जरूरी होगी। और ज़कात की अदायगी में कमरी साल का यानी इस्लामी कैलेंडर का ख्याल रखकर आदमी को ज़कात देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से ज़कात अदा करता रहे, तो चूंकि 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। अब अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी मालिक निसाब रहा और वो ज़कात अदा करता रहा, लेकिन उसने अंग्रेजी तारीख के हिसाब से ज़कात अदा की, तो 35 साल में जाकर 1 साल का फर्क पड़ जाता है, तो गोया उसने 1 साल की ज़कात अदा नहीं की। इसलिए ज़कात की अदायगी में आदमी कमरी इस्लामी और चांद की तारीख का एतबार करेगा। और जैसे ही आदमी के लिए ज़कात की अदायगी ज़रूरी हो जाए, तो जितना जल्दी हो ज़कात अदा कर देनी चाहिए। बहुत सारे मालदार लोगों को देखा गया कि उनके पास ज़कात के पैसे पड़े रहते हैं, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करते। लिहाजा जैसे ही साल गुजर जाए तो ज़कात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग रमज़ान में इस नियत से ज़कात अदा करते हैं ताकि सवाब ज़्यादा मिल सके। इस लिहाज से अगर कोई आदमी रमज़ान में ज़कात की अदायगी का एहतमाम करे, तब भी कोई हरज नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि ज़कात कितनी फ़र्ज होती है? आदमी के पास जो भी कुछ माल होगा, साहिब हैसियत मालिक निसाब है, उसके बाद जो भी कुछ होगा उसका 2.5% 40वां हिस्सा देना होता है। 100 में से 2.5 रुपये, 1000 में से 25 रुपये, 1 लाख में से 2,500 रुपये, 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात अदा करनी पड़ती है। माल तिजारत के बारे में ये मसला भी याद रखना चाहिए कि माल तिजारत पर उसी वक्त ज़कात फर्ज होती है जब आदमी तिजारत की नीयत से कोई माल खरीदता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने बहुत सारे फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदे और उसका मकसद ये है कि मैं इसको बेचूंगा। अब इस पर जो भी कुछ इन चीज़ों की मालियत होगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसका एतबार करके ज़कात वाजिब होगी। लेकिन किसी आदमी ने तिजारत की नीयत से कोई सामान खरीदा था, फिर बाद में उसका इरादा बदल गया, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर खरीदा था बेचने की नीयत से, फिर उसको अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करने लगा, तो अब ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह किसी आदमी ने कोई तिजारत का सामान खरीदा, पैसे भी चले गए, लेकिन अभी तक वो हमारे कब्जे में नहीं आया सामान, तो फिलहाल उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक वो हमारे कब्जे में नहीं आ जाएगा। इसी तरह बहुत सी मर्तबा आदमी कोई चीज़ इसलिए खरीदता है कि ये चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, अपने पास रखूंगा और अगर नफ़ा मिलेगा तो बेच दूंगा। जब तक उसके अपने पास है तब तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। जब वो खालिस नियत कर लेगा कि मुझे बेचना ही है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। अभी ये बात जिक्र की गई थी कि जो आदमी मालिक निसाब हो, उसके पास जो भी कुछ हो, साल गुजरने पर ज़कात अदा करना ये वाजिब होता है। अब अलग अलग कुछ ऐसे मसाइल जिक्र किए जा रहे हैं कि जिन सूरतों में आदमी पर ज़कात वाजिब होती है। नंबर 1, किसी आदमी ने हज की नियत से पैसे जमा कर रखे हैं, लेकिन इसी दौरान उसका सालाना वक्त आ गया ज़कात अदा करने का, तो अब उसने जो पैसे हज की नियत से जमा कर रखे होंगे लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तो अभी इन पैसों पर भी ज़कात वाजिब होगी। नंबर 2, इसी तरह किसी आदमी ने शादी वगैरह के लिए पैसे जमा कर रखे हैं या ये कि सोना खरीद कर रखा है, तो जिसकी मिल्कियत में भी वो पैसे होंगे, वो माँ की मिल्कियत में है या माँ बाप जिसकी मिल्कियत में भी हैं, या उन्होंने अपनी बेटी के हवाले कर दिए हैं, तो जिसके पास भी होंगे वो पैसे, सोने चांदी जेवरात, उन पर ज़कात वाजिब होगी। नंबर 3, कोई फ्लैट है या प्लॉट है या कोई मकान है, आदमी ने इस नियत से खरीदा है
کہ مجھے انہیں آگے بیچنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو اب ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 4، کسی آدمی نے کسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ آن لائن بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ آن لائن شیئرز خریدتے ہیں، تو جب سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو ان خریدے ہوئے شیئرز کی جو بھی اس وقت موجودہ مالیت ہوگی، اس مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 6، بہت سارے لوگ لائف انشورنس جیون بیمہ کراتے ہیں، تو جو لوگ بھی جیون بیمہ کراتے ہیں اور جتنے پیسے وہ جمع کیے ہوئے ہیں ان پیسوں پر بھی سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جتنی رقم اصل ہے آپ نے جمع کرائی ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو آپ کو انٹرسٹ یا سود مل رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس پیسے کو تو ویسے ہی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری ہے، شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہوتا۔ جتنا آپ کا اصل اماؤنٹ ہے جو آپ نے جمع کرایا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 7، اسی طرح بہت سارے لوگ بینکوں میں فکس ڈپوزٹ کے نام سے اپنی رقم جمع کراتے رہتے ہیں یا ایک بار کرا دیتے ہیں، تو جو بھی فکس ڈپوزٹ کے نام سے رقم جمع کی ہوئی ہے تو چونکہ اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے، لہذا سالانہ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے اس قیمت کو بھی ہم اپنے بقیہ پیسوں میں ایڈ کریں گے اور پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ملنے والا ہے یا ملا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ پیسے قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی واجب ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے کسی ایسے آدمی کو قرض دیا ہے کہ جس کے پاس رہتے ہوئے ہمارا قرض کا پیسہ مرے گا نہیں بلکہ ہمیں واپس یقینی طور پر ملے گا، تو پھر ابھی فی الحال ہی اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے جب ہم بقیہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے آدمی کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ وہاں وہ پیسے مر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پتہ نہیں کب واپس دے گا، تو فی الحال اگر آپ ان پیسوں کی زکوٰۃ نہ دیں بلکہ بعد میں جب مل جائیں تب دیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے زیورات کو گروی رکھ رکھا ہے، کسی سے قرض لے رکھا ہے اور زیورات سونا چاندی اس کے پاس گروی رکھ رکھا ہے، تو جب تک یہ سونا چاندی گروی رکھا رہے گا تو اس وقت تک نہ تو گروی رکھنے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ ہی جس کے پاس رکھا ہوا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب وہ واپس مل جائے گا تو پھر اگلے سالوں کے حساب سے پھر اس سونے چاندی کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کسی آدمی نے لون لیا ہوا ہے یا قسطوں پر کوئی سامان لیا ہوا ہے، گاڑی لی ہوئی ہے یا کوئی دوسرا سامان لیا ہوا ہے، اور اس سامان کی جو قسطیں ہیں وہ کئی سالوں تک چلیں گی، تو اب آدمی جب اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے گا کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو چونکہ اس پیسے میں سے، اماؤنٹ میں سے، ٹوٹل میں سے زکوٰۃ کے پیسوں کو مائنس کرنا ہوتا ہے، تو اب آدمی صرف ایک سال کی قسطوں کی جتنی رقم بنتی ہو اتنی مائنس کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی سامان خریدا ہوا ہے اور وہ سامان 10 لاکھ روپے کا ہے، اب 10 لاکھ کے حساب سے اس کو جو قسطوں کے ذریعے سے اس سامان کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ قسطیں تو 10 سال تک چلیں گی۔ اب جب آدمی اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا تو اپنے ٹوٹل مال میں سے 10 لاکھ کو مائنس نہیں کرے گا، بلکہ ایک سال میں جتنے پیسوں کی قسطیں جانی ہیں صرف ایک سال کی قسطوں کے برابر رقم کو مائنس کرے گا، اس کے بعد جو بچے گا پھر اس ٹوٹل پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چونکہ آج کل عام طور سے لوگ قسطوں پر سامان لے رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ضمنی مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب نہیں ہوتی ہے، تو وہ چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ گھر جس میں آدمی خود رہ رہا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، عالیشان ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جس میں وہ آدمی رہ رہا ہے اس گھر پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ فلیٹ وغیرہ یا وہ مکان جو آدمی نے کرائے پر دے رکھے ہوں، ان فلیٹ کی اور مکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ ان مکانوں سے، ان فلیٹ سے جو کرایہ آ رہا ہے، جو رینٹ آ رہا ہے، اگر وہ اتنا کرایہ ہے کہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا اگر وہ تھوڑا ہے اور ہمارا کچھ دوسرا بھی کچھ کام کاج ہے، ہم جاب کرتے ہیں یا یہ کہ ہمارا کوئی کاروبار بھی ہے، ان پیسوں کے ساتھ اس کرائے کے پیسوں کو بھی ملائیں گے اور سب کو ملا کے پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3، استعمالی کپڑے ہیں، انسان جو کپڑے پہنتا ہے سال بھر جب بھی پہنتا ہو، اسی طرح فرش وغیرہ ہے، چادریں ہیں، کتنی ہی قیمتی ہو، ان تمام تر چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے جیسے فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، مکسر ہے، یا یہ کہ آدمی اپنے طور پر موبائل استعمال کر رہا ہے،
वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, वो स्मार्टफोन हो या एक सादा हो, वो इन तमाम तर चीज़ों पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर 5, गाड़ियाँ। इंसान के पास जो सवारी के लिए गाड़ियाँ होती हैं उन पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है, चाहे वो लग्जरी अच्छी खासी महंगी गाड़ियाँ हो चाहे वो सस्ती गाड़ियाँ हो, गाड़ियों पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर 6, अपनी हिफाजत के लिए, अपने डिफेंस के लिए आदमी के पास जो हथियार होते हैं उन हथियारों पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर 7, घर में जो सजावट वगैरह के बर्तन रखे होते हैं उन पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर 8, अगर किसी के पास हीरे जवाहिरात हैं तो हीरे जवाहिरात पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर हीरे जवाहिरात वो तिजारत के लिए और बिजनेस के लिए हैं तो चूंकि फिर ये तिजारत का सामान हो जाएंगे, अब इन पर और इनकी मालियत पर ज़कात वाजिब होगी। नंबर 9, बहुत सारे बिजनेसमैन और जो ताजिर हजरात होते हैं उनके कारखाने हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, या ये कि उनके पास ट्रक वगैरह हैं, गाड़ियां हैं जो किराए पर चलती हैं, या ये कि वो मशीनें हैं जिन मशीनों से कोई ना कोई चीज़ तैयार होती है, उन तमाम तर चीज़ों पर भी कोई ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास कपड़े की फैक्ट्री है, वहां कपड़े बनाने वाली मशीनें हैं, चाहे वो 10 हो 50 हो, उन पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह किसी आदमी के पास 10-50 ट्रक हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं जो किराए पर चलते हैं, उन पर भी कोई ज़कात नहीं। जैसे इसी तरह जो काश्तकार हजरात होते हैं, किसान, उनके पास ट्रैक्टर हैं और उससे जुड़े हुए तमाम तर आलात हैं, उन पर भी कोई ज़कात नहीं होती है। नंबर 10, खुलासे के तौर पर यह है कि वो सामान जो आदमी ने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा हो उस पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने एक घर खरीदा, फ्लैट खरीदा या घर खरीदा, और उसकी नीयत यह है कि मैं इसको अपने रहने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा चाहे बाद में करूं, तो इस पर कोई ज़कात नहीं है क्योंकि इसने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा। या ये कि किसी आदमी के पास कोई फ्लैट है और उसका इरादा यह है कि मैं इसको अपने पास रखूंगा, लेकिन अगर कोई अच्छा खासा नफा इससे मुझे मिल गया तो बेच दूंगा, तो जब तक बेचने की नीयत नहीं होगी तब तक इस पर भी कोई ज़कात नहीं होगी। अगला सवाल यह है कि ज़कात के पैसे हम किसको दे सकते हैं? जो आदमी मालिक निसाब नहीं है, यानी जिस आदमी पर खुद ज़कात फर्ज नहीं है, तो उसको ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, कोई ज्यादा मोहताज और मुस्तहिक है तो बेहतर है कि उनको दिया जाए। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में तलाश किया जाए कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है, तो अपने रिश्तेदारों में देना ज्यादा सवाब है, सिला रहमी का भी और ज़कात की अदायगी का भी। इसी तरह जो मदारिस हैं उन मदरसों में भी अगर हम ज़कात देते हैं तो भी ज्यादा सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात की अदायगी का भी, दूसरा हमारा वो ज़कात का पैसा हुसूल दीन के लिए जो तलबा अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, मदरसों में रह रहे हैं, दीन की हिफाजत को जो करने वाले हैं उन पर खर्च होगा। लेकिन आमतौर से आजकल बाजारों में जो पेशावर भिखारी घूमते रहते हैं उनको ज़कात के पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनका ये कारोबार होता है भीख मांगना, उनको ज़कात नहीं देनी चाहिए। एक मसला ये भी होता है कि किसी आदमी ने अपने तौर पर तहकीक की कि भाई फुला आदमी मुस्तहिक है या नहीं, उसकी तहकीक में ये निकला कि यह आदमी मुस्तहिक है और उसने अपने ज़कात के पैसे उसे दे दिए, लेकिन बाद में उस पर यह इंकिशाफ हुआ, पता चला कि वो आदमी तो मुस्तहिक नहीं था, वो तो मालदार था और मैंने उसे ज़कात दे दी, तो अब उसकी ज़कात अदा हो जाएगी देने वाले की, लेकिन लेने वाला बहरहाल गुनहगार होगा, क्योंकि उस आदमी ने दूसरे को धोखे में रखकर ज़कात ली है। या ये कि इस आदमी की अपनी तहकीक सही नहीं थी और इसने ये समझा था कि हाँ ये आदमी मुस्तहिक है और दे दी, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन तहकीक करना और छान पटक करना ये ज़रूरी है। ये कुछ ज़कात के मुताल्लिक मसाइल थे। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।